Hello everyone. I hope you all are doing well. Today's topic is related with infrastructure. In this video, we will discuss about Indian system of medicine. Indian system of medicine are the system of medicine which are considered to be Indian in origin or which have come to India from outside and got assimilated into Indian culture. India has 6 recognized system of medicine popularly known as आयुष. बच्चे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो या तो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं या फिर कहीं बाहर से आया है वो सिस्टम और हमने उसको एडॉप्ट कर लिया है। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो आपने देखा है कि हम लोग काढ़ा पीते हैं। कोई हमें बता रहा है कि दालचीनी को उबालिए, कोई हमें ये कह रहा है कि हल्दी का पानी पीजिए या अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए योगा करिए, मंत्रोच्चारण करिए। ये सब हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दिस इज़ अबाउट आयुष। दिस इज़ आयुष। इस बार बेटा 12th क्लास के फाइनल पेपर में इसमें से क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयुष। आयुष contains 6 recognized system of medicines in India. First is Ayurveda, then Yoga, then Siddha, then Naturopathy, Unani and Homeopathy. Let's start discussing about this topic. First we have Ayurveda. Ayurveda is one of the traditional system of medicine that is still used in India. It is a holistic way to achieve health through body, mind and spirit. The Ayurvedic practitioners recommend diet and lifestyle changes along with drug therapy. They have identified a number of medicinal preparations and surgical procedures for curing various ailments and disease that cannot be completely curable in other medical systems. The methods of Ayurveda, such as applying herbs and massage, can also be applied along with other system. जैसे पतंजलि के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। आपने गिलोय वटी के बारे में सुना है, तुलसी वटी के बारे में सुना है, अश्वगंधा के बारे में सुना है। अभी आपने कोविड-19 के टाइम कोरोनिल नाम से एक मेडिसिन डेवलप की है पतंजलि ने। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं मिला, लेकिन उसमें उसको बोलना गद्दा लगाएगी मैं नीचे आऊंगा सोने। बाय। लेकिन अगर हम उसके बारे में बात करें तो कोरोनिल में वही सारी हर्ब्स थी और उन्हीं हर्ब्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर हम आयुर्वेदा के बारे में बात करें तो आयुर्वेदा हर बीमारी का सॉल्यूशन देता है, सर्जरीज़ का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मींस ये एक बहुत ज़्यादा रिच वे ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट दिस इज़ अबाउट आफ्टर आयुर्वेदा वी विल डिस्कस अबाउट योगा। इट इज़ वेल नोन। आप डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको पता है कि अपने स्कूल में योगा को कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि योगा एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, हमें मेंटल स्ट्रेंथ भी देता है और उसके साथ साथ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। योगा एज एन आर्ट originated and was practiced in India from 1000 years. It has references in Upanishads and Purans. Composed by Indian Aryans in the Vedic period, the main credit for systematizing yoga goes to Patanjali, who wrote Yoga Sutra. 2000 years ago, Yoga Sutra is the most important basic text on yoga. It is through this means that the essential messages of yoga is spread throughout the world. It is defined as an art of righteous living or an integrated system for the benefits of the body, mind and inner spirit. So dear students, we should pay attention towards yoga. आपने देखा कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की फॉर्म में सेलिब्रेट कराना शुरू कर दिया। इसको रिकॉग्नाइज़ कराया गया है। इसका रीज़न क्या है कि वर्ल्ड में सभी इस बात को समझ रहे हैं कि योगा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है for the body, mind and inner spirit. Then Unani. Unani has a long and impressive record in India. It was introduced in India around 10th century AD with the spread of Islamic civilization. Now, Unanipathy has become an important part of Indian systems of medicine. India is one of the leading countries in terms of its popularity.
It is very much similar to our Ayurveda. Unani established that disease is natural process and that the symptoms are the reactions of the body to the disease. Actually, अगर हम बात करें तो ये जो हमारे आयुष के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे मेडिकल केयर सिस्टम हॉलिस्टिक हैं और ये क्या मानते हैं कि डिज़ीज़ जो होते हैं ये नेचुरली अक्कर होती हैं और नेचुरली ही बॉडी इसको अपने आप ठीक भी कर देती है। इसमें किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, हर्ब्स ही इसको ठीक कर सकती है। ये जो सारा सिस्टम है ये होलिस्टिक है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के होता है। देन नेक्स्ट दिस इज़ अबाउट सिद्धा. Siddha comes from the word Siddhi, which means an object to attain perfection or heaven. This is the oldest among the Indian medical system, namely Ayurveda and Unani. It is also known as Siddha Vidya in India and also the oldest medical system in the world. As nowadays, people's preferences to natural health remedies and herbal health remedies is increasing day by day. Siddha has emerged as an important and unique system of Indian medicine when compared to other traditional medical systems in existence. बच्चे सिद्धा जो है वो सिद्धि वर्ड से आया है। सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने का परफेक्शन। जब हम ये कह लेते हैं कि उसको इस काम में सिद्धि हासिल है, सिद्धि का मतलब होता है कि वो इस काम को बड़ा परफेक्शनली या बड़े परफेक्शन से इसको पूरा कर सकता है, तो ये वर्ड होता है सिद्धि। इसमें भी क्या होता है, आप एक बार आजकल इन दिनों में आप देखते हो कि पॉजिटिव सोचिए, एक पॉजिटिव ऑरा बनता जाएगा और वही चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। इसी को ही हम सिद्धि की फॉर्म में ले सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं या अपने आप को इंटरनली हम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि अगर कोई बीमारी हो भी गई है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये है हमारा सिद्धि। नेक्स्ट, दिस इज़ अबाउट नेचुरोपैथी. Naturopathy deals with the healing power of nature as it assumes that all healing powers are within our body. This means that within every human organism there is a healing energy. Naturopathy regards that when we go against nature, only then we fall ill. Fasting has been described as nature's way to recover. A thorough rest that includes fasting is the most favorable condition in which an ailing body can purify and recover itself. So यहाँ पर वो क्या कह रहा है, नेचर अपने आप ठीक कर देगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ करिए कि मुझे एसिडिटी हो रही है या मुझे स्टमक एक हो रहा है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, फास्टिंग कर सकती हूँ कि कुछ भी ना खाया जाए, तो अपने आप ही बॉडी क्या कर लेती है, रिकवर हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरोपैथी. देन होम्योपैथी. होम्योपैथी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, होम्यो meaning similar and pathos meaning suffering or treatment. In this system, a drug and a disease that produce similar symptoms cancel each other. मतलब इसको इस तरह से दिया जाता है कि जो डिज़ीज़ है और जो ड्रग दी जाती है वो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है. It was popular among people due to its remarkable healing capacity. Also, its remedies are free from side effects. So this is all about homeopathy. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है. जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ, टॉन्सिल्स का. टॉन्सिल्स एक बड़ी कॉमन डिज़ीज़ है, लेकिन और बहुत तंग भी करती है. हाई फीवर हो जाता है, गले में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, लेकिन अगर हम इसको होम्योपैथी से ट्रीट करें तो इसका ट्रीटमेंट ईजी भी है, विदाउट साइड इफ़ेक्ट भी है. सो दिस इज़ अबाउट होम्योपैथी. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द 6 recognized Indian medicine system in detail. First is Ayurveda, second is Yoga, third is Siddha, Naturopathy, Unani and Homeopathy, and all these are known as Ayush. अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कोविड-19 में in order to boost up the immunity, Ayush department has issued कवाथ, आयुष कवाथ, एक काढ़ा उसने बनाया है और उसको ऐसे मार्केट में नहीं बेचा गया, लेकिन जो आयुष डिपार्टमेंट के अपने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इसको सप्लाई किया गया. और उसमें भी क्या है, उसमें दालचीनी है, गिलोय है, तुलसी बटी है, इस तरह से करके 3-4 चीज़ें डाली गई हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयुष. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज़ इंडिया अ राइजिंग डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म और ट्रेवल. बेटा इसके बारे में हमने थोड़ा सा अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ मेडिकल टूरिज्म?
or travel. India is the most prominent destination as per the Medical Tourism Market Report 2015 due to highest quality treatment provided at the lowest cost. इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास है, इंटरनेशनल लेवल का है और उसकी कॉस्ट भी बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है. In October 2015, the value of Indian medical tourism was estimated to be $3 billion and it is expected to reach $7 to $8 billion by 2020. As per the CII Grant Thornton report released in October 2015, 34% of medical tourists are from Bangladesh and Afghanistan. 30% are from Russia and Commonwealth of Independent States and remaining from Africa and Middle East. So, इंडिया का मेडिकल टूरिज़्म बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. इंडिया इज़ इमर्जिंग as a destination for medical tourism. The main reason is that it is providing highest quality or world class healthcare at lowest cost. Now, encouraging factors for medical tourism in India. क्यों है ऐसा कि हमारे इंडिया की तरफ ही लोग भाग रहे हैं? मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. मेरी एक रिलेटिव हैं, तो वो यूएसए में रह रही हैं. उनके छोटे बच्चे का, उनका एक बेटा है 4-5 ईयर्स का है, तो उसको एक कोई दाना से उसको कोई पिंपल सा निकल आया, तो उसको कट लगवाना था. जैसे हम आमतौर पे बात करते हैं कि फोड़े पिंसल से निकल आते हैं, तो उसको कट लगवाना पड़ा. तो उसके लिए जब उसने डॉक्टर से वहाँ पर हॉस्पिटल में डिस्कस किया, तो उसकी कॉस्ट उन्होंने बताई 4 लाख रुपीज़. हमारे यहाँ पर एक छोटे से दाने को कट लगवाना हो या उसको सर्जरी करानी हो तो मुश्किल से 500 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट बताया गया मोर देन 4 लाख. और अभी नए गए थे तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी उनके पास नहीं था. देन व्हाट दे डिसाइडेड कि इंडिया आया जाए, पेरेंट्स को भी मिला जाए और बच्चे का कट भी लगवाया जाए. और जब उन्होंने उसको कट लगवाया तो उसमें उसके सिर्फ 1500 रुपये का खर्चा आया विद कंप्लीट मेडिसिन. और कोई छोटी सी बात थी. इसी तरह से उसको एक छोटी सर्जरी अपनी भी करानी थी, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना था. हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन पे 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आता है, लेकिन वहाँ पर उससे मोर देन 10 लाख रुपीज़ मांगे गए. तो उसने क्या डिसाइड किया कि दोनों काम इकट्ठे कराए जाएँ. 1 महीने के वो वहाँ से छुट्टी लेकर आए अपने ऑफिस में से और आकर उसने ये दोनों काम यहाँ निपटाए. इसका रीज़न क्या था कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है एट लोएस्ट कॉस्ट. Now, the very first point, this is low cost of treatment is the leading factor encouraging many tourists to visit the country to seek medical help. While other countries have elaborate process to obtain a visa, India is constantly working towards making the process more streamlined and efficient. बाकी कंट्रीज़ में वीज़ा लेना एक इशू होता है, लेकिन इंडिया में मेडिकल ग्राउंड पर वीज़ा बड़ी आसानी से फॉरेनर्स को मिल जाता है. Allowing more foreign medical tourists to enter the country, India has over 500 plus accredited healthcare providers. तो बड़ी आसानी से मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉरेनर्स जो है इंडिया में अटेन कर सकते हैं. पहली बात, हम बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एट लो कॉस्ट. सेकेंडली, हमने अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को ईजीली एक्सेसिबल भी बना दिया है थ्रू गिविंग freedom or by making the visa process simplified. Then, even though India is a developing country, it provides immediate service and care to patients. The country also provides world-class and standardized medical services and care with the help of the latest technology. During the recovery period, patients can turn to a multitude of therapies like Ayurveda, नेचुरोपैथी एंड योगा. क्योंकि जो रिकवरी पीरियड होता है, सपोज़ करिए किसी की सर्जरी हुई है, उसको उसके बाद रिकवरी चाहिए, मतलब उसको ठीक होने में महीना 2 महीने लगेंगे. तो जब ऐसा कोई बड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मेंटल इश्यूज़ भी काफ़ी आ जाते हैं. तो उन सब में योगा, उन सब में नेचुरोपैथी बहुत ज़्यादा, आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. तो ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ भी इसको शुरू किया जाता है. और इंडिया में अभी हमने डिस्कस किया कि ये 6 सिस्टम जो हैं ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं.
Another major factor that makes India a desirable medical tourism destination is the fact that it has English speaking doctors, reducing the language bar for foreign tourists. क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो किसी भी कंट्री से अगर लोग इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनके लिए कोई लैंग्वेज बार नहीं है, मतलब वो बड़ी आसानी से यहाँ पर इंट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द encouraging factors that promotes medical tourism in India. Now we will discuss about the possible problems of medical tourism in India. अगर हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता लग जाएगा तो हम बड़ी आसानी से उन प्रॉब्लम्स को कोप अप भी कर सकते हैं. While there are significant benefits of medical tourism, the drawbacks are worth noting. There is always a possibility of poor quality surgery and improper facilities. हमारे हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड हैं, बहुत रश है यहाँ पर, और इस वजह से क्या है कि सर्जिकल जो सर्जरीज़ हैं वो कई बार पुअर क्वालिटी की होती हैं. व्हेन पेशेंट्स ट्रेवल टू डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप नहीं हुआ जितना फॉरेन कंट्रीज़ में है, तो ये भी एक बहुत मेजर इश्यूज़ है. अगर हम दिल्ली में जाएं, एम्स हमारा एक हॉस्पिटल है, आपने उसके बारे में सुना है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल में बहुत रश है और जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनको कई बार बेड नहीं मिलता, उनको कॉरिडोर्स में ज़मीन पर ब्लैंकेट बिछाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है. ये एक मेजर चैलेंज है कि हम वो क्वालिटीज़ नहीं दे पाते जो क्वालिटीज़ फॉरेनर्स एक्सपेक्ट करके इंडिया में आती हैं. व्हेन पेशेंट्स ट्रेवल टू डेवलपिंग कंट्रीज, द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल केयर मे नॉट ऑलवेज मैच देयर एक्सपेक्टेशंस, which could pose a problem. Additionally, after strenuous surgery, traveling back from another country might lead to complications in the patient's health. बहुत बड़ी सर्जरी कराकर उनको जब वापस जाना होता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है. Adjusting to a new country during treatment, which could include access to the right food and speaking the same language, are other challenges associated with medical tourism. बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पेशेंट्स को तो हैंडल कर पाते हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले अटेंडेंट्स के लिए उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो ये भी एक मेजर इशू है. मींस कोई फॉरेनर इंडिया में अमेरिका से कोई आया है ट्रीटमेंट कराने के लिए, सपोज़ करिए कि उसने मेदांता में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन जो उसके अटेंडेंट्स हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, बहुत महंगा रहेगा उनके लिए रहना, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. नेक्स्ट, this is about the completion of chapter. With this the chapter is over. So बच्चे, chapter number 11, that is infrastructure, is now completed. Please revise your chapter thoroughly. जो पहले वीडियोस भेजी हैं उनको भी ध्यान से सुनिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे भेजिए. रिवाइज योर चैप्टर thoroughly. बेटा, अभी तक भी स्कूल खुलने के कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, सो बी सिंसियर, डू योर वर्क प्रॉपरली. 12th क्लास में ही बहुत ज़्यादा सिलेबस डिलीट नहीं हुआ है, और जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो अपने आप में ही बहुत वास्ट है. सो सिंसियर बने रहिए, वीडियोस को ध्यान से सुनिए. अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आपको उसके बारे में कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो बच्चे आप नेट की हेल्प ले सकते हो. जब स्कूल खुलेंगे हम अपने प्रॉब्लम्स को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी सिंसियर बनिए, अपने घर में रहिए और अपना काम प्रॉपरली करते रहिए. सो गुड बाय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ.